وإذ خود منفرد گشتن فأبین ان یحملنها وہم آسمان کو مناسبت القدس و زمین کو مناسبت بسط و کوہ کو مناسبت سبادت و معدن جواب کو نمایت کدر میں آفت لاہیا پر آنظر نئے خاک کے بعد نستریال اداستین فقر فاقہ بینو عبود وہاں بارے امانت بجان گرم و عرض و عالم بدر نیان بدر نیندشت کو تمہارا چیز کیا تم مستند چیزیں را کہ خاک کنن خاک مالن خاک را درج مالن مردانہ پیش آمد بارے اہل حق آسمان و زمین نکشیدن و خود نہادا و نعرہ حلیم مزید تر. دل میں تصوف کے بتانے سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ہر چیز پر غور و فکر کرنے لگتا ہے. چنانچہ وہ اس اصول پر بھی قدرت کے غور کرتا ہے کہ بعض دفعہ کل آنے والا آج ہی دنیا سے چلا جاتا ہے اور جو 3 برس 4 برس بلکہ 80 برس پہلے آیا تھا وہ کل آنے والا جو چلا گیا دنیا سے اس کے بعد جاتا ہے. تو آدمی اس پر غور کرتا ہے کہ ارادہ اور مشیت کا معاملہ قانون سے ماورا ہے. بہت سی دشواریاں ہوتی ہیں سیمینار میں آج آئے اور آج ہی پڑھ کر جا رہے ہیں اس کے پیچھے بھی کوئی وجہ ہوتی ہے اور سیمینار کے انتظامیہ پر اس قدر لوڈ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو کہنا ہوتا ہے کہ ہم آج ہی جا رہے ہیں. اب وہ وائس چانسلر ہیں پرنسپل ہیں اور ان کو آج ہی جانا ہے تو ان کی آج ہی جانے کی علاج رکھنی پڑتی ہے. مطلب پھر تو سیمینار میں تھوڑا مشاعرے کا بھی رنگ ہونا چاہیے. جو جتنا بعد میں پڑھے اتنے ہی بڑا شاعر کہلاتا ہے. تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. ساری عمارتوں کے ساتھ 5 منٹ کے لیے اپنے مضمون سے انصاف کرنے کو تشریف لا رہے ڈاکٹر محمد اشرف علی صاحب شعبہ عربی کے استاد ہیں اسسٹنٹ پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف کلکتہ میں کلکتہ سے تشریف لا رہے ہیں. میرے مخالف کا عنوان ہے مخدوم جمع اور ان کا تصور ہے. اس موضوع پر مخدوم جہاں نے جو کچھ لکھا ہے میں خاص طور پر ان کی کتابوں میں مکتوبات کو صدی میں پیش نظر ہے. علم کی آپ نے اہمیت بیان کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ تمام کامیابیوں کی کلید ہے اور جہل تمام بدبختیوں کی جڑ ہے. آپ نے اس پر بھی اپنے اس خجان کا اظہار کیا ہے کہ اگر ہمیں ایمان ہے تو علم ہونا چاہیے اور اگر علم نہیں ہے اس کا مطلب ایمان کا دعویٰ صحیح نہیں ہے. آپ نے ترجیح دی ہے اور آپ نے کہا ہے کہ اولین ترجیح ہماری علم کے حصول پر ہونی چاہیے. نبیوں نے اس کی خبر دی ہے اس پر ہمیں یقین نہیں ہو رہا ہے لیکن اگر ایک کافی طبیب ہمیں کچھ کہتا ہے کہ یہ تمہارے لیے نقصان دہ ہے اور تمہارے لیے بہتر ہے تو ہم اس پر یقین کرتے ہیں. تو یہ ہمارا کیسا ایمان ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ مخدوم نے اس علم سے کیا مراد کی ہے اور وہ یہ کیا چاہتے تھے. اپنے خط میں انہوں نے صاف کہا ہے کہ علم وہ نہیں ہے جو علم سے مقصود کی کیا مراد ہے وہ جو عیش و عشرت کے دروازے کھول دے منصب اور عہدے پر متمکن کر دے غنا اور تونگری کی قریب دے دے اور شاہوں اور وزیروں کے آستانے عالیہ تک پہنچا دے. کیا وہ علم ہے؟ نہیں. شیخ عمر کو یہ خط میں لکھتے ہیں علم وہ نہیں ہے جو عمرہ و سلاطین کے در تک تمہیں پہنچا دے یا تمہیں قاضی و مفتی بنا دے. علم سے میری مراد آخرت کا علم اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی راہ کا علم ہے. دیکھو کہیں غلطی میں نہ مبتلا ہو جانا. دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ علم یہ ہے جو دین کے راستے میں آدمی کے کام ہے. صدر العلماء کو جنہوں نے قضا کا منصب قبول کر لیا تھا ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ کھٹک دل میں پیدا ہوتی ہے کہ تحصیل علم کے وقت ہی برادر حدیث کی نیت میں حصول جاہ و مرتبہ کا خلل ضرور پیدا ہوا ہے ورنہ علم اور علم کے ثمرات پہ محرومی آپ سے وجود میں نہ آتی. حق سبحانہ و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر حق میں مشغول نہ ہوتے. یہ مصرع مشہور ہے
तरफ रहबरी न करे और जहालत करे। इसी खत में मजीद लिखते हैं कि अल्लाह पनाह में रखे उस इल्म से जो बंदे को हक़ सुब्हानहू व तआला से दूर कर दे और उसकी राह जो इंसान को दुनिया की तेज रफ्तार तरक्की से दूर कर दे और उसकी रंगीनी और आनाई और खुशहाली के करीब ना आने दे। हमारे किस काम का इस रहते इंतजार इल्मी में ज़िंदगी के तमाम शोरों से मुताल्लिक़ शाख दर शाख उलूम को क्या इंसान पढ़ना लिखना छोड़ दे? जाहिर है ऐसा मशवरा कोई भी नहीं ले सकता, लेकिन ये ज़रूर है कि आखिरत नज़रों से ओझल न हो और ज़िंदगी अमल सालिह से खाली न रहे। मखदूम जहाँ ने इसी की तलक़ीन की है। फरमाते हैं, ऐ भाई, उलूम तो बहुत हैं और हम लोगों की उम्र थोड़ी है। यह मुख्तसर सी उम्र तमाम इल्म के हुसूल के लिए काफ़ी नहीं है। फ़र्ज़ तो बस इसी मिक़दार में है जिससे अमल की दुरुस्तगी हो सके। क़यामत के दिन अमल की कोशिश होगी उस इल्म की नहीं जो बहुत ज़्यादा यानी गधे का बोझ हो का मतलब बीमारी अहमिल असफा। मखदूम जहाँ ने अपने मकातीब में इस पर जोर दिया है कि इल्म को अमल से मजबूत किया जाए और आखिरत को बेहतर बनाया जाए। इल्म से अल्लाह का इरफान मकसूद ना हो बल्कि इक्तिसाब दुनिया पेश नज़र हो तो वह ऐसा ही है जैसे चोर के हाथ में चिराग। लेकिन आज लोग इस इल्म दीन से अक्सर तबाकुल बरतते हैं। उनकी सारी तवज्जुहात इल्म दुनिया पर होती है, जिसके नतीजे में लोग ईमान व कुफ्र की हकीकत और ताअत व मासियत के अहकाम तक से नाबलद होते हैं। मलिक खिज़र के नाम एक मकतूब में मखदूम ने इसी का रोना रोया है। फरमाते हैं, ऐ भाई, ये जो कहा गया है तलबुल इल्म फरीज़ा, इससे यही इल्म ताअत व मासियत यानी इल्म दीन मुराद है, जो यकीनन हर शख्स पर फ़र्ज़ है। इसके अलावा और दूसरे उलूम फ़र्ज़ नहीं है, मगर आखिर ज़माने में ऐसे लोग पैदा होंगे जिनके हाथ पर सोना चांदी के डले रख दो तो वह बिला गौर व फिक्र उसका वज़न बता देंगे कि इसमें इतना असल मिक़दार में सोना है और इतने मिक़दार में खाद है, और जब तुम वज़न करोगे और परखोगे तो उतना ही साबित होगा जितना उन्होंने बताया था। और जब उनसे ईमान, कुफ्र, ताअत व मासियत के हुक्म व अहकाम और मसलों को पूछो तो वह जवाब से कासिर रहेंगे। क़तन वो नहीं जानेंगे कि ईमान क्या है और कुफ्र किसे कहते हैं, ताअत क्या चीज़ होती है और मासियत क्या है, सिवाय इसके कि कुफ्र ईमान ताअत व मासियत का नाम सुना है और रवायती तौर पर तक़लीदन इसे अख्तियार किया है। ये ज़माना जो हम लोगों का है शायद वही ज़माना है और हम लोगों के रोज़मर्रा के कारोबार भी वही हैं। सर पर खाक डालना और अपनी इस इल्म की इसमें नेक उलमा की सोहबत अख्तियार करनी चाहिए, और अगर वो नेक उलमा ना हो तो अब ऐसे में फिक्रमंदी की ज़रूरत है। मवेशी और चौपाहों की तरह खा पी कर बेमकसद ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि उनके मलबूजात से इल्म की शमअ रोशन की जाए और उलमाए आखिरत दस्तयाब हो तो उनकी सोहबत अख्तियार की जाए। सदरुल उलमा के नाम भी उन्होंने कहा है तो उलमाए दुनिया से दूर रहा जाए। अगर इनकी सोहबत अख्तियार की जाएगी तो इल्म की बरकतें ज़ाहिर हो जाएंगी। ये लोग दीन से कोसों दूर हैं, इल्म में सामरी की मानिंद, ज़ाहिर में पैगम्बर मूसा की तरह। मुझे उम्मीद है कि इल्म से मुताल्लिक़ मखदूम के ये ख़यालात हमारे ज़हन व फ़िक्र के ज़रीक़े खोलेंगे और इल्म के नाम पर गुमराही की गर्म बाज़ारी में ये मताए फ़कीरी चिराग़ साबित होगी। अब इससे पहले कि हम जल्दी से दूसरे वकाला निगार को दावत दें, प्रोफेसर लियाकत को इन्हीं रुख़्सत हो रहे हैं और वो आपसे दो जुमले तशक्कुर के कहना चाहें। नहीं हुई थी और जिस वक्त ये मौका मुझे फराहम किया गया और हमारे मुनीम साहब और साहिब सजादा ने तशरीफ लाए, मैंने इसको कबूल किया। इसलिए ये सेमिनार तो आना था, दरअसल बुलावा कर सकती यहाँ मेरी का हाजिरी मिली। मैं ममनून हूँ कि इस बारे में मेरी हाजिरी हुई और आप हजरात से मेरा एक ताल्लुक़ भी रहा। मैं बहुत चाहता था कि आप कासमी साहब और सर मुस्तफा कई ऐसे लोग थे जिनके आपके पेपर्स या उसके दरबार सुनने के लिए दिमाग को रोशन करना था, लेकिन चूँकि कल हज़रत ख्वाजा मोइन चिश्ती के 800 में उस के सिलसिले में तकलीफ देखी मजबूरन मुझे जल्दी जाना पड़ रहा है।
लिहाजा मज़ाक का शुक्रिया बिलखसूस साहिब सजादा और मरीम साहब की मेहरबानियों ज़ियाफ़तों मेहमान नवाजी दिल खोल के सखावत का और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस मामले में सबको कामयाबी दे। और जिन हज़रात के साथ मेरे दो दिन में मुलाकात रही उनसे भी दिल में बहुत सुकून हुआ। कोई गलती भी हो तो माफ़ी चाहता हूँ। उम्मीद के इस शेर के साथ जब तो जाते हैं मैं गले से नीर फिर मिलेंगे अगर खुदा आया। खुदा तानद्दीन दादी के तनहा मीर डॉक्टर बहजमीन अख्तर तशरीफ ला रहे। ये तो मकाला नहीं है। अच्छा जो पंच के ऊपर माइक है, माइक वहाँ पर बहुत अच्छा मकाला आपने पढ़ा, लेकिन वो सवाल जहन में उठते हैं। आपने दुनियावी तालीम को बिल्कुल ही रद्द करने की बात की है। मेरा ख्याल ये हदीस को जरूर की है कुतुबुल इल्म अलवसी तो मेरा ख्याल है कि ये इसमें दुनियावी तालीम की तरफ रजूल का भी इशारा है। और हम मखदूम रसूलुल्लाह अलैहि में और बाकी जगह पर पढ़े जहाँ उन्होंने कहा है कि इल्म जो है वो अपने इसमें बताया कि सिर्फ में और इसमें शामिल है, यहाँ तो मेरा ख्याल है। लेकिन हुजूर की जो हदीस खास तौर से यही है तो ये इशारा दुनियावी इल्म की तरफ भी कर रही है। क्या इसमें कोई हालात नहीं है? हम दरखास्त करेंगे कि मकाला निगार आपसे बातें कर लेंगे। वो शायद कन्वे नहीं हो सका आपका सवाल, और फिर किसी वक्त हम लोग उस सवाल को ले लेंगे। अभी तशरीफ ला रही हैं मोहतरमा डॉक्टर बहजमीन अख्तर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है अरबिक कॉलेज फॉर वुमेन, को भी उस्मानिया यूनिवर्सिटी का एक मशहूर कॉलेज है ख़वातीन के लिए और नहायत शानदार बिल्डिंग में चलता है। मैं एक बार वहाँ हाजिर हुआ हूँ एक सेमिनार के सिलसिले में। आप वहाँ शोबे अरबी की हेड हैं और तशरीफ लाई हैं। आप उनका मकाला समाज फरमाइए। इनके मकाले का उन्वान है हज़रत मोहम्मद ने कहा कि हयात व खिदमत के माखज़ा। 5 मिनट में मुझे अपना मकाला ख़त्म करना है, इसलिए मैं इसके एब्स्ट्रैक्ट आपके सामने पढ़ एक तारीखी कौल है कि अंग्रेज़ों की हुकूमत के अव्वलीन दौर में इंग्लैंड की मलिका ने अपने खास जासूसों को हिंदुस्तान रवाना किया था ताकि ये पता लगाया जा सके कि यहाँ किसकी हुकूमत या सिक्का चलता है और नास किसकी इत्तिबा करते हैं। मलिका के जासूसों ने तफसीली तहकीक के बाद ये इत्तला दी कि हिंदुस्तान में खबरें हुकूमत करती हैं, ख्वाब से खबरें, और लोग इनकी तालीमात की इत्तिबा करते हैं। बहावल डिस्कवरी ऑफ इंडिया। हिंदुस्तान को इस बात पर फजीलत हासिल है कि यहाँ तकरीबन हर खित्ते पर किसी न किसी बुजुर्गान दीन और लियादा के निशानात मिलते हैं। तबलीग दिन के अलावा उलूम इस्लामिया के इख्तिताम में नेक बंदों का बहुत अहम रोल रहा है। कौमी यकजहती, रवादारी और हिंदुस्तान की आज़ादी में इन्हीं की मरूने मिलत है। यही वजह है कि बिलालिहाज मजहब और मिलत आज भी लोग इनके आस्थानों से फ़ायदा उठाते हैं। इन्हीं में से एक नाम हज़रत मखदूम मोइनुद्दीन जहां शेख शरफुद्दीन अहमद जलाली का भी है, जिनका शुमार हिंदुस्तान के अहम और जलील तालिब इल्म में होता है। आप एक इंसान को इक़्तिदार पसंद, खुदा और रसूल के सच्चे आशिक और आला इक़्तिदार के हामिल आलिम व सुकून थे। आपके मजलिसों में हर साइल को इख्तिलाफ राय और सवाल करने का हक हासिल था। इन मजलिसों में गुफ्तगू किसी एक मौजू पर मकसूद नहीं थी, ना ही कोई सिलसिलेवार दर्स हुआ करता था। इस्लामी मौज़ूआत, शरीयत और तरीक़त की बातें किसी किताब पर तबसरा हुआ करता था। इन मजलिसों में आप सब्र इख्तियार का दामन हाथ से जाने नहीं देते थे। इसी खुसूसियत की वजह से मौलाना मुज़फ़्फ़र बल्बी ने आपसे तवील मुनाज़रे के बाद आपके हक़ इजाज़त में दाखिल हो गए। उलूम इस्लामिया के फ़रोग़ में हज़रत मखदूम की खिदमत। हज़रत मखदूम जहाँ वो आलिम भी हैं जिन्होंने मुस्तनद मकतूबी व मलकूती सरमाया अपने पीछे छोड़ा है, और वह ये सरमाया इतना मुअस्सिर है कि बग़ैर रहनुमाई के इंसान अपने तौर पर इससे तालीम हासिल कर सकता है। इससे आपकी वसी इल्मियत का पूरा अंदाज़ा होता है। तफसीर, हदीस, फ़िक़्ह, फ़लसफ़ा, मंतिक़ वगैरह के नाज़ुक तफ़सीलात और मसाइल पर आपने सैर हासिल बहस की है, वो भी इस सहूलत के साथ कि आम आदमी भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकता है। इल्म तफसीर। कुरान करीम के मुश्किल मक़ामात को समझने के लिए दूर दराज से लोग आपके पास आते थे। हज़रत मखदूम जहाँ ने तफसीर बयान करने के लिए कुछ शर्तें मुकर्रर कर रखी थी। माने व अल्फाज़ कुरान पर आपकी राय मुतदिल है, उसलूब पुरमस्त, अंदाज़ बयान सहल और दिलकश है। ख़ान पुरनेमत और मारियुल मानी के बाब शशों में फरमाते हैं कि तफसीर ज़ाहिरी में दीन में जिन जिन बातों की ज़रूरत है वही इसमें मौजूद है। हरगिज़ अफ़राद को तफ़रीद नहीं, कुरान नहीं दी गई। तफसीर कबीर के बारे में लिखते हैं कि इसमें मुफस्सिरीन
बहुत सारी खताएं हैं, पहले मैं इन खताओं को निकालता हूँ। ऐसी 3 खताओं का यहाँ जिक्र किया जाता है। पहला, हज़रत सुलेमान से 40 दिन के लिए सल्तनत इसीलिए ज़ाहिर हो गई थी कि आपकी बीवी ने 40 दिन तक अपने महल में बुत परस्ती की थी। दूसरा, पैगंबर दाऊद अलैहिस्सलाम उरिया की खूबसूरत बीवी से निकाह करना चाहते थे, इसलिए उसको बाहर भेजकर मरवा डालना जाना था। तीसरा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी ज़ैनब से निकाह करना चाहते थे और ख्वाहिश थी कि हज़रत ज़ैद हमें अलग कर दें, मगर जब हज़रत ज़ैद तलाक के बारे में पूछते तो आप रोक देते थे। इस तरह मुफस्सिरीन के दरमियान ये भी इख्तिलाफ है कि मौज़ूदैन दाखिल कुरान हैं या खारिज कुरान। हज़रत मखदूम मकतूबात दोसती में तवील तफसील और बहस के बाद इसको दाखिल कुरान करार देते हैं और फरमाते हैं कि अगरचे लोग कहते हैं कि ये सूरतें सहर और झाड़ के तौर पर उतरी हैं और वक्ती थी, इब्न अब्बास के बारे में भी मरवी है कि उन्होंने इन 2 सूरतों को अपने मुसहफ में नकल नहीं किया। यह कौल सही नहीं है, क्योंकि मुसहफ हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में जमा किया गया था और तमाम सहाबा किराम और मुसलमानों का इस पर इत्तेफाक व इजमा है। तो खारिज का सवाल कहाँ से आता है? अगर कोई ये कहता है कि मौज़ूदैन खारिज कुरान है तो गोया वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर भुगतान रख रहा है। इनकी एहतियात का तो ये आलम था कि उन्होंने सूरह बरक़ के शुरू में बिस्मिल्लाह सिर्फ इसलिए नहीं लिखी कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये पूछना भूल गए थे कि सूरह बरक़ में कोई अलग सूरत है या सूरह इंफियाल का तर्जुमा व आखिर है। इल्म हदीस, फन हदीस एक मुश्किल फन है। मफ़हूम हदीस और रिवायत के लिए भी हज़रत मखदूम जहाँ ने कुछ उसूल मुकर्रर कर रखे थे। चुनांचे क़ुरान को निमत के मजलिस शशों में लिखा है कि इल्म हदीस में रिवायतों के इंतखाब में काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है। बसा औक़ात लोगों ने अपने कौल की तक़वियत व शहरत के लिए भी कह दिया कि क़ाल रसूलुल्लाह कज़ा कज़ा। हदीस का पस मंज़र समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हदीस बयान कर देना और इससे मफ़हूम ले लेना काफ़ी नहीं है। आपके नज़दीक रिवायत अहादीस रिवायत बिलमाना मुरज्जा है, जिससे ज़ाहिर होता है कि हज़रत मखदूम का दायरा इमाम अबू हनीफा के दायरे से वसीतर है। अक़साम हदीस से बहस करते हुए फरमाते हैं कि ज़ात व सिफ़ात खुदाबंदी की मारिफत में ख़बर वाहिद पर इत्तिफ़ा करना उलमाए सुन्नत व जमात के नज़दीक जायज़ नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना ज़न्ना ला युग़नी मिनल हक़्क़ि शैअन, मगर हाँ परवाज़ में ख़बर वाहिद से इत्तिफ़ा कर सकते हैं क्योंकि यह उनका मंबा ज़ाहिर पर है। अब यहाँ मिसालें मैं तर्क करती हूँ। इल्म फ़िक़्ह में मखदूम को मनसब इज्तिहाद हासिल था। आप दूसरे फ़ुक़हा के बनिस्बत आसानी व वसअत के हामिल थे, तब नज़र न थे और इस बात पर मुत्तफ़िक़ थे कि फ़िक़्ह का मफ़हूम जुदा होता है। शरह आदाब अल मुरीदीन में फरमाते हैं इर्जा इलल कुरान की जमील अहकाम के माने ये नहीं है कि सुन्नत को इज्तिहाद की तरफ रुख भी न करो। तसव्वुफ़, मौलाना अब्दुल बारी नकवी अपनी किताब निज़ाम तालीम व तरबियत में लिखते हैं कि मखदूम का फ़लसफ़ा कलाम जदीद फ़लसफ़े का लफ्ज़ी तर्जुमा लगता है। तसव्वुफ़ में आपको इंतहाई दर्जे का कमाल हासिल था। मखदूम खुद शरह आदाब अल मुरीदीन में फरमाते हैं हज़रत हकीकी सूफ़ी अल्लाह के ख़ास बंदे होते हैं। उलमा जिन कामों के लिए उम्मत को मुकल्लफ करते हैं वो शरीयत है, और जो कुछ उम्मत की आसानी की नज़र से कामों और इबादतों को अपने ऊपर बढ़ा लेते हैं वो तरीक़त है। मुर्शिद व मुरीद का रिश्ता इल्म, अमल और तक़लीद का होता है। रूह के बारे में ये फरमाते हैं कि इसके साने ने सिर्फ इसके होने की खबर दी है, इसकी माहियत व कैफियत से खबरदार नहीं किया। यसअलूनका अनिर रूही कुल रूहु मिन अम्रि रब्बी, आपने रूह की निस्बत से अबू बकर अल-कहती के कौल की जांच भी की है, जो ये कहते हैं कि रूह का मतलब दोबारा ज़िंदगी है। बकौल हज़रत मखदूम जहाँ तसव्वुफ़ का ज़ाब्ता और कानून देरीना है, जिस पर पैगंबरों और सिद्दीक़ों का अमल रहा है। क्योंकि ज़माने में खराबियाँ पैदा हो गई हैं, इसलिए कुछ सूफियों ने अपनी रविश बदल दी, जिसकी वजह से इनके दर्जात घट गए। मज़ीद फरमाते हैं कि तसव्वुफ़ की इब्तिदा हज़रत आदम के वक्त से मिलती है। सूफियों के इस्तिग़फ़ार की असल हज़रत आदम की दुआ रब्बना ज़लमना अनफुसना से ही होती है। दुनिया की पहली खानक़ाह काबे शरीफ की है। हज़रत शुएब से हज़रत नूह और हज़रत मूसा तक की खिलाफत चलती रही है। हज़रत मूसा और हज़रत ईसा ने बैतुल मुक़द्दस को खानक़ाह बनाया, जहाँ इबादतें व इसरार की बातें हुआ करती थीं। फिर मस्जिद नबवी का गोशा, जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि जब किसी सहाबा की इज़्ज़त व तकरीम करते तो इनको अपना रिदाए मुबारक या अपना पैरान शरीफ इनायत फरमाते। समा के मसले पर आप कहते हैं कि ये इज़हार मोहब्बत का तरीक़ा है, न हलाल है न हराम है, लेकिन ये आम आदमियों के लिए नहीं है। इश्क़ हक़ीक़ी के बारे में
और ये अरबाब आला और शमीम साहब की और सर साहब की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ दावत दी और मुझे अपना मकाला पेश करने का मौका दिया। बहुत बहुत मुबारकबादी के साथ और शुक्रिया के साथ मैं काम करती हूँ। मंसूर आलम को जो साबिक उस्ताद शोबे फारसी मौलाना आज़ाद कॉलेज को करता है, तशरीफ ला रहे हैं। अरे यार तुमको ये वो काम नहीं होता, तुमको मांगना चाहिए था पहले। जनाब सदर शहीद साहब पप्पू को दे कैसे, पप्पू कैसे दे दिया कास्टिंग करना। अभी तक कल से आज तक आप तमाम हजरात ने मकाले सुने, सभी को